India has always been a nation of chai. For generations, tea has been more than just a beverage. It's been woven into our mornings, our memories, and our meetings. But lately, something interesting has been brewing. With new age coffee brands like Sabco and Blue Tokai, India is slowly but surely embracing a new coffee culture. But specialty coffee in India is still a luxury. It's expensive, urban, and out of reach for everyday consumer. And that's where the guest for today's podcast comes in. His name is Abhijit Anand, and he's the founder of Up Coffee. Abhijit, who is an IIT Dhanbad graduate, spent nearly a decade working in oil and gas companies across Europe. When he started Up Coffee, his mission was very simple: to make specialty coffee affordable in India. When Abhijit started Up Coffee back in 2022, he personally handled everything from cleaning the floors to brewing the coffee and even serving the role of a barista. Fast forward to today, Up Coffee has more than 30 outlets across Mumbai, Delhi, and Gurugram, serving thousands of cups every day, and this is just the beginning. On today's episode, Abhijit talks about his mission behind Up Coffee and how his IIT and corporate journey fueled his ambitions, what it really takes to build a physical first D2C brand in India, his take on what Indians want from coffee, and what fuels him to keep going even on the hardest days. So stick around and watch this episode till the very end, because this might be the conversation that changes everything for you. Now, without any further ado, let's dive right in and hear out from the founder of Up Coffee, Abhijit Anand. So thank you so much for joining me on this show, the Baatcheet podcast. Abhijit, thank you so much for joining. How are you doing today? Thanks a lot, Surya, for having me here. It's a pleasure. Doing very good. Every day is a new story. Been crazy, but good. Yeah. But I just wanted to know your story about the love of coffee, because earlier we were discussing about, how coffee is brewed, and we were also talking about the barista culture which is abroad and how those people work. And then you were also telling me about an incident where one of your baristas is a struggling actor as well. So can you tell us about that journey? How did you love coffee so much that you started a brand in it? And yeah. Well, my journey for coffee is a very interesting story. I come from east of India, from Bihar. I've always known coffee as something which is sprinkled. That's how I knew in winter we'll have chai and then we'll sprinkle Nescafe on top. And that's how I knew coffee. Was never a coffee person all my life. Very die-hard chai person. Eventually, when I moved into work after college, still did not catch traction to coffee, because coffee was a very premium product, and I didn't like the instant coffee once mixed, right? So it didn't happen. So I never got a natural traction until 2019. I was a die-hard chai person, right? 2019, I moved to Europe for work, and that's when I started getting into coffee, and that too not initially. So initially, obviously, as chai person, I was living outside, so I used to, जनता को मैं चाय पिलाता था, because India is known for tea all over the world, right? Yeah. So I'll invite people, brew chai for them the traditional way on the gas, and get and serve tea, because that's what my genre was. Eventually, I got into coffee, and when I got into coffee, started drinking coffees because it's a very popular trend in Europe. And that's when I realized, can coffee be so good? And based on my cost of living there, coffee made sense. I could buy coffee for $2.5 per cup. And for me, my cost of living, I could easily spend it. That made sense there. And then I eventually thought, coffee is so flavorful, so amazing. That was actually my start of journey, getting into coffee. Of me drinking once, then twice, and initially didn't started with drinking espressos and Americanos. It started by drinking cappuccinos with 3 sachets of sugar, then removing sugar, then removing milk, then removing, making it strong. That's how the journey for a lot of people happened. For me too as well, that's how it happened. So that's my little journey of how I got into coffee. And then COVID further expanded it. During COVID, I got a machine at home. Okay. Back in Romania. Okay. And then I started getting into coffee beans. Then I started getting into espressos and types of grinds and how it's grown, where it's grown, what is the nature. I think that was a pivotal point. And look at me today. I drink thrice a day. I love it. But how did you actually transition from the chai person, since you were talking about your love for chai, and not until 2019 you switched to coffee? How did that transition happen? And आपको कॉफ़ी के बारे में, मतलब एक वो होता है ना, चस्का कब से लगा? लाइक चाय का चस्का बहुत लोग को होता है, बट कॉफ़ी का चस्का कैसे लगा? एंड कॉफ़ी के बारे में आप जैसे बोलते आ रहे थे कि फ्लेवरफुल होता है, उसमें एस्प्रेसोज होते हैं, मशीन्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं एग्जैक्टली? एंड ब्रूइंग का क्या मतलब है? बिकॉज ये आपने टर्म बोला एंड ये मेरे को भी नहीं समझ आता. आज भी मेरे को कोई बोलता है मैंने कॉफ़ी ब्रू कर ली, मेरे को नहीं समझ आता. लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल कॉफ़ी मशीन जैसे मैं स्टारबक्स पे देख रहा हूँ, किसी ब्रांड पे देख रहा हूँ, एंड ब्रूइंग का क्या मतलब है? राइट.
बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके तोड़ते हैं इसको पहले। तो पहला सवाल कि कॉफ़ी में घुसा कैसे। सो हुआ ये कि एक बार आपको कॉफ़ी समझ में आ गई, एंड आई विल जस्ट पुट समझ आ गई का मतलब समझाओ। मतलब समझाता हूँ। तो कॉफ़ी एक ऐसी सब्सटेंस में कैफीन है, और कैफीन गिव्स यू एनर्जी बूस्ट। ठीक है। एंड बिकॉज यू आर वर्किंग, यू वांट मोर आउट ऑफ योरसेल्फ, कॉफ़ी इज दैट इंस्टेंट बूस्ट दैट गिव्स यू इमीडिएट एनर्जी। मतलब पियो आता है, पियो असर दिखता है, पियो और जियो, पियो और जियो। तो गुड वन। तो हमारे साथ ये हुआ कि पहले चाय पीता था। चाय में एसेंशियली आई लव चाय, आई स्टिल ड्रिंक विद माय फैमिली व्हेन आई एम विद देम, बट देन चाय में अगर आप देखोगे, चाय इज नथिंग बट फ्लेवर्ड मिल्क। ओके। हम लोग चाय को कैसे पसंद करते हैं, काफ़ी गाढ़ा कर देते हैं, दूध मिलाते हैं, अदरक मिलाते हैं, इलायची मिलाते हैं, लास्ट में चाय पत्ती होती है थोड़ी सी। कड़कपन जिसको हम कहते हैं चाय पत्ती में होती है, आता अदरक और इलायची और लौंग से है फ्लेवर। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी फ्लेवर्ड, टी फ्लेवर्ड मिल्क essentially. But I love it. I also still love it when I'm with my family. But that doesn't give you that boost. That doesn't give you that energy. It doesn't, because caffeine की मात्रा बहुत कम है, right? Coffee on the other hand is an instant fix, and it's good for health. Goes amazing as long as it's drank in suitable quantities, like proven by medical research. So that is what coffee does. So once you are into it, and I always say there is life before coffee, life after coffee. Ask me and a lot of people, after coffee is better. Right? So that's how it happened to me. So got into coffee, started drinking, and then I got that switch naturally. And then from drinking, not even drinking coffee at all, to drinking thrice a day became very natural to me. So that was my process essentially of moving into coffee. Now, your next question was what's brewing, correct? So brewing is a process by which a coffee is made. Now there are several methods to do that. Just like for example, you say brewing stories. आप कहानियाँ बना रहे हो, right? जब बहाना बनाना होता है तब कहानियाँ बनाते हैं पेरेंट्स को। तो ये सब प्रोसेस है, ये है ना। बियर भी ब्रू होता है, इस तरह कॉफी भी ब्रू होता है। इट्स अ प्रोसेस, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस वेयर यू पुट कॉफी पाउडर in contact with hot water, and I'm not talking about the process of espressos, and there are 3 different kinds, and I'll just come to it shortly. With pressure and temperature, high temperature water and a particular pressure, you force that water through the coffee ground, and the extract you get is a brewed coffee. That's in the cup, right? So that's how the coffee is brewed. Now there are 3 different methods to do that essentially on a global level. One is instant coffee, right? So instant coffee is a very misunderstood word, because we see coffee as convenience through instant coffee, कि कॉफ़ी लिया, पानी मिलाया, पी लिया। पर अगर आप देखोगे वो पानी में चाय पत्ती मिलती है, खुलती है? नहीं, उबालनी पड़ती है। उबालनी पड़ती है। तो कॉफ़ी कैसे मिलती है, कभी सोचा? नहीं, बिकॉज वो कॉफ़ी बनी हुई है। So मैंने तो चाय पत्ती, मतलब आप एग्जाम्पल, कॉफ़ी मैंने आज बना लिया, उसको डीप फ्रीज करके क्रिस्टलाइज करके पाउडर में बन गया कॉफ़ी। एक्सट्रैक्ट कर लिया पानी, जो मैंने बताया अभी, पानी एक्स्ट्रा कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट, फिर उसको क्रिस्टलाइज कर दिया, तो बन गया, डब्बे में डाल के बेच दिया। दैट्स इंस्टेंट कॉफ़ी। ओके, ठीक है। दैट्स वन टेक्निक, वेरी वेल टेक्निक दैट यूज्ड टू बी very popular in the West in the 1900s. Now people don't go into that. In India, unfortunately, we'll talk about it probably more. अभी भी वही चल रहा है। There are new age companies talking about instant coffees, flavored coffees, ये वो सब artificial preservatives हैं. People won't claim it, but that's the reality. That's one segment. That's not fresh, adulterated, mixed a lot of times with chicory, which is a plant root. That's one. Second is filter coffee. That's very prevalent in our South India. Exactly. And very common to the type of coffees or the way chai is made. Okay. Essentially, filter coffee is made through decoction. It's a particular equipment where you put coffee beans to a particular grind size, and then you pour hot water to it, and then coffee extract seeps down. Right? So that's decoction. Okay. Now, decoction, just by the name of it simply means to extract water out of coffee beans through a particular pressure, which is very low, and a particular temperature, which is pretty high, boiling water.
The extract is called coffee, black coffee. Then you mix milk to it, foamed milk which is boiling on your stove, and then you add to it. That's a conventional way of drinking coffee in South India. That could be different varieties of coffee beans. That's a different matter. The method is this. The third method, which is very common around the world and which has taken the world by storm, is espresso-based methods. Okay. Just like you mentioned, some companies which use certain machines. These are semi-automatic, automatic machines which have been designed in a way with a motor, with a pump, with a boiler to give coffee grounds, fresh grounds, a particular pressure and a particular temperature forced through coffee grounds so that the extract that comes out flavorful, comes out for ready consumption as black coffee. And then through different recipes of milk, foam, sugar, syrups, you make variety of drinks. So that's the third method, and that's the most prevalent method today because that's fresh. You get the coffee beans fresh, you grind it fresh, keeps the aroma, is the smell there, and then you brew it right in front of you rather than having something which is frozen 1 year later and having it today. So that's the essence of brewing and different kinds of coffee. But how does this matter to a 5-year-old kid? Like अगर कोई बच्चा कॉफ़ी बचपन से पी रहा है, जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि बेटा एनर्जी चाहिए ग्लूकॉन डी पी लो, वो एक ऐड आता था ग्लूकॉन डी का जिसमें सूरज यूज टू सक बच्चे का एनर्जी आउट एंड ग्लूकॉन डी का ऐड का प्लेसमेंट हो जाता है. आपने जैसे बोला कि कॉफ़ी से भी एनर्जी मिलता है एंड इट कीप्स यू गोइंग, तो वाई डोंट पीपल ड्रिंक ग्लूकोज? लाइक वाई डोंट यू थिंक ग्लूकोज इज एन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू कॉफ़ी? Very good question actually. Glucose में because essentially it is doing the same thing in a layman correct term. Glucose में sugar होता है? Yes. Coffee में होता है? Glucose itself is sugar. Coffee? There's no sugar. Okay. The way glucose or sugar works is very different than the way caffeine works in your body. Right? But still that doesn't make sense to a kid, right? No, for kid. So I don't even recommend for kid to drink coffee. For a kid, it's not recommended because coffee is a certain thing that develops with age. A lot of doctors around the world won't recommend for a 5-year-old to drink chai or coffee either. By doctor's recommendation, they are recommended to drink milk, and that too in limited quantities. In India, milk is a great culture. Yeah. But if you look at doctors' prescriptions and researchers around the world, a lot of people don't even recommend kids to drink milk other than the mother milk, not cow's milk, because that's not meant for humans. I don't want to get into that. But then that's a discussion in public. Now, when it comes to kids, for a 5-year-old, he or she is not recommended to drink chai or coffee, anything. Right? We are just changing the palate. Now, this question will be very relevant for a 20-year-old. Should you drink glucose or should you drink coffee? Choice is yours. Do you want to drink sugar or do you want to drink something which has less than 10 calories? Answer is simple. But still, if you get going around cafes, you see a lot of them putting sugar. So there is nothing against it, no, Surya. My point is, if you match with sugar, you want your coffee beverage sweet. What's the problem? Should not be a problem. My point is, the coffee beverages or anything per se is a personal choice. You should enjoy the way you want. Soy milk चाहिए तो soy milk मिलाओ, oat milk चाहिए तो oat milk मिलाओ, cow milk चाहिए तो cow milk मिलाओ. एक चीनी चाहिए, white चाहिए, brown चाहिए, sugar free चाहिए, jaggery चाहिए, जो चाहिए मिलाओ. You do what you like. What do you think is good for your health? Right? And that's how it should be. So we respect everybody. And that's how, be it anything in life. And I think that's how coffee is. You look around the history, a lot of coffee originated from Europe. Fresh coffee market originated from Europe. And when you read history, coffee has gone through crazy phases. Coffee was banned. People were killed for selling coffee. Why? Interesting, right? Yeah, it's very... So, what happened was that coffee actually became a holy grail of competition between the Islamic rulers and the Christianity rulers in Europe at a certain point in time. Wow. In the European and the Middle Eastern region. And when the coffee was discovered in Africa, and it was the story of discovery of coffee is so interesting. It was discovered by goats. Goat. Oh, not the greatest of all time, but the real goat. The real goat. The bakra. The real bakra. Correct? So कहानी इतनी गजब है कि बकरे को एक बकरे वाला था जो बकरे को लेके घूमता था और एक जगह जाता था बकरा, और बकरा जब लाता था उसको नींद नहीं आती थी रात में, उछलता रहता था,
अच्छा, ओके। तो उस पकड़े वाले को पता चला कि भाई ऐसी क्या चीज़ है उस खेत में कि ये उछलता रहता है, सोता ही नहीं है, ऐसा क्या खाता है। दैट्स व्हेन ही फिगर्ड आउट कि यहाँ तो कुछ पेड़ उगता है, दैट वाज कॉफी। ओके, वाओ। That's when the process of coffee started in Africa, right? And that's how the entire origin कि ऐसी कोई प्रोडक्ट है, ऐसे बनती है, तरह तरह के तरीके हैं। फिर वो यमन गया और कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं कॉफ़ी के ऊपर। एंड द स्टोरी ऑफ कॉफ़ी एंटरिंग यूरोप इज ऑल्सो फैंसी स्टोरी। प्रोबब्ली इट्स अ मैटर ऑफ अदर डिस्कशन, हम लोग 2 घंटे बात करने लग जाएंगे। तो बट देन व्हाट आई वांटेड टू से वाज दैट द कॉफ़ी ऐसे डिस्कवर हुआ, देन इट स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। But then coffee in itself has been a drink of inspiration and revolution in Europe, just like chai has been in India historically. हमारे यहाँ गांव में आज भी चाय की टपरी होती है, सारी पॉलिटिक्स वहीं डिस्कस होती है। Exactly. होती है ना। मुझे नहीं पता किसी को क्या है, जनता को पता है 5 बजे शामी की चाय की टपरी पे जाना है, मुर्गे स्टॉल पे या जो भी चौक है, अजीब अजीब नाम भी है हमारे यहाँ, वहां जाना है, उस चौक पे चाय पीनी है और हमारा स्टॉल सेट होता है। कॉलेज याद कर लो, आज भी तुम चले जाओ टायर 2 टायर 3 विलेजेस, यही हिसाब है, सेट होता है। हाँ, सेट है। और वहां पे क्या बातें होती हैं? पॉलिटिक्स। भारत वही बनती है। प्रधानमंत्री सेलेक्ट हो जाता है भाई वहां पर। ये चीज यूरोप में होता था कॉफी को लेकर। So a lot of European Renaissance, European Revolution, a lot of wars, a lot of countries have been evolved, a lot of things have happened. Over a cup of coffee. Correct. The entire Renaissance, European Renaissance, which is very famous, right, was actually promoted at coffee shops. It's an intellectual place. So what I mean to say overall. Exactly, like अगर मैं इधर अपना ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे अभी हम देखते हैं इंडिया में चाय की टपरी पे थोड़ी मस्ती वाली बातें होती है, बट आप कैफ़े में जाएंगे किसी, तो वहाँ पर थोड़े लैपटॉप लेकर लोग बैठे हैं। तो वो जैसे आपने जो पार्ट बोला ना कि कॉफ़ी इज़ अ प्लेस ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, शायद वो सही भी है, बिकॉज चाय की टपरी में कोई लैपटॉप लेकर नहीं बैठता है। एंड शायद कोई ब्रांड आया भी नहीं उतने स्केल पे जितना है कॉफ़ी ब्रांड है इंडिया में जो लैपटॉप लेकर बैठो। अभी आप बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, नाम पता ही होगा, बट द थिंग इज कि कोई लैपटॉप लेकर उधर नहीं बैठ रहे होते, दोस्तों के साथ बैठ रहे। तो वाई डू यू थिंक दैट डिफरेंस एग्जिस्ट? वाई डू यू थिंक दैट पार्शियलिटी एग्जिस्ट बिटवीन चाय एंड कॉफ़ी? चाय इंडिया में पहले से है, तो कॉफ़ी क्यों नहीं डोमिनेट कर पा रहा है मार्केट को? यंगस्टर्स को तो कर रहा है, बट वो गाँव गाँव तक टपरी की नहीं बन रही है कॉफ़ी की। तो देखो, चाय कॉफ़ी की टपरी है, पहली बात ऐसे बोलता हूँ, किसी भी चाय की टपरी पे चले जाओ, नेस्कैफे का या किसी इंस्टेंट कॉफ़ी का सैशे कॉफ़ी पिलाता है। हाँ, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। ओके। कि चाय और कॉफ़ी एक पर्टिकुलर, दैट आई एग्री कि चाय कॉफ़ी पर्टिकुलर जॉनर इंटरेस्टिंग लोगों को अपने अपने इंटरेस्ट ग्रुप में इनवाइट करता है, बट उसके इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाय पीने वाले भी बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, कॉफ़ी पीने वाले भी बहुत इंटेलेक्चुअल। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जनरली ऑब्जर्व करोगे। हाँ, पर मैं ऐसा कहना चाह रहा था कि कॉफ़ी शॉप से फॉर एग्जाम्पल लोग लैपटॉप लेके बैठते हैं बिकॉज कैफेज बनाए गए हैं वैसे। चाय की टपरी पर लैपटॉप लेके कैसे बैठोगे आप? बैठे नहीं पाओगे ना, एसी नहीं है, वाईफाई नहीं है, बिजली नहीं है। बट मेरे हिसाब से मुद्दा वो नहीं, मेरे हिसाब से, और ये चीज़ यूरोप में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि वहाँ लैपटॉप लेके लोग बैठते हैं, लोग वहाँ बैठ के डिस्कशन करते हैं बिकॉज वहाँ पे कॉर्नर कॉफ़ी शॉप्स बहुत हैं, सेलिंग एस्प्रेसो बेस्ड कॉफ़ीज, राइट? कल्चर है वैसा। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि हमारे यहाँ इंडिया में कल्चर बस कैफेज का है जहाँ कॉफ़ी अच्छी मिलती है या मिल सकती है। अच्छी मिलती है इज अ बिग स्टेटमेंट, मिल सकती है। आज भी लोग 250-300 रुपये खर्च करते हैं, कॉफ़ी अच्छी नहीं मिलती भाई, जली हुई मिलती है, कड़वी मिलती है, ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या पी के आ गए, ज़बरदस्ती पीते हैं या इसलिए जाते हैं बिकॉज उनका वाईफाई मीटिंग करना होता है। तो यह एक फैड बन चुका है, जैसे एक फैड बन चुका है। तो होना ऐसा नहीं चाहिए, होना ऐसा चाहिए कि द कॉफ़ी शुड गेट द सेम रेस्पेक्ट एज चाय। जैसे आपको अच्छी कटिंग चाय मिलती है ना, वैसे एक बेहतरीन कॉफ़ी मिलनी चाहिए जो इंस्टेंट नहीं होनी चाहिए। कटिंग कॉफ़ी कह लो या क्या कह लो कि एक अच्छी क्वालिटी फ्रेश कॉफ़ी मिलनी चाहिए। आप जब कटिंग चाय पीने जाते हो, वो गर्म पानी मिला के देते हैं आपको? नहीं देते ना, वो तो ब्रू करते हैं ना आपके लिए सामने। हाँ, बनाते हैं। लेकिन कॉफी तो गर्म पानी में मिला के देते हैं आपको। हाँ। सोचा है कभी? मैं मशीन में ब्लेंड करके बस। पर वो इंस्टेंट होता है ना, वो तो गर्म पानी में ठक ठक मिलाते हैं या उसी को उबाल देते हैं, उसे छानते नहीं है। कॉफी मशीन होती है, हाँ, उसमें भी सेम इंस्टेंट कॉफी मिल जाता है, वो बस गर्म पानी जाता है अंदर, इंस्टेंट कॉफी मिलाता है, उसमें कॉफी छनती नहीं है। नहीं, जैसे क्या वो तो है, जैसे कैफेज में तो है, बीन है, कैफेज में तो है ही है। कैफे में बता रहा हूँ कि जहाँ टपड़ियाँ हैं या जो चाय के वहाँ पर तो वो सैशे मिलता है ना, सैशे ही मिलता है।
सो अब ये जो नेचर है मिनी आउटलेट्स, QSR आउटलेट्स का कॉफ़ी में है इंडिया में? है ही नहीं। आपको अच्छी कॉफ़ी पीनी है, आपको कॉफ़ी जॉइंट्स जाने हैं, आप तो कैफे जाओगे ना, और कहाँ जाओगे? है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब यूरोप चले जाओ, US चले जाओ, कोने कोने पे कॉफ़ी शॉप्स मिलेंगे आपको, बैठने की जगह नहीं होगी, वहाँ बस लोग कॉफ़ी पीने जाते हैं। कॉफ़ी पीने जाते हैं, जैसे इधर हम चाय पीने जा रहे हैं नीचे। करेक्ट। बट इंडिया में वो नहीं है ही नहीं। यूरोप में, इंडिया में कॉफ़ी पीते हो अगर बाहर कैफे में, कितने की मिलती है? 300 साढ़े 300 की। हाँ। US में गेस करो कितने की मिलती है? मेरे एक्सपीरियंस से जब मैं जर्मनी में था, लाइक अराउंड 3-4 यूरोस अप्रॉक्सीमेटली। 3-4 यूरोस? 5 मैक्सिमम 5-6 तक हो जाता है मैक्सिमम 3-4 यूरोस में आराम से मिल जाती है। हाँ। यहाँ 300 की मिलती है। एक ही बात हो गया। जर्मनी कॉफ़ी कहाँ से लाते हैं? इंडिया से। इंडिया ब्राज़ील। इंडिया कॉफ़ी कहाँ से लाते हैं? इंडिया से केरला, चिकमंगलुरु, कर्नाटका। हमसे कॉफ़ी लेते हैं, हमारे रेट पे बेचते हैं, और हम यहाँ कॉफ़ी उगाते हैं और सेम रेट पे बेचते हैं। समझ रहे हो क्या सीन है? और ये चीज़ कोई मिड सेगमेंट है ही नहीं। दैट्स व्हाई इट्स नॉट प्रोपेल्ड येट। जो तुम्हारे सवाल का अगला जवाब, या तो आपको वो मिलेगी जो इंस्टेंट है, या तो आपको वो मिलेगी जो बहुत प्रीमियम है। बीच का सेगमेंट ही नहीं है जो बाकी देशों में है, इंडिया में नहीं है। अब ये यंग क्राउड में जो हमारी जनता है, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मोर देन 370 मिलियन पीपल एज यंग बिटवीन 25 to 35 और यंगर। हमारा एवरेज पॉपुलेशन जो है मतलब 27 इयर्स का है, एंड दैट्स द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड आज के डेट में। Yeah, द मासेस नंबर। जनता को कॉफी चाहिए, क्यों? कॉफी इज समथिंग व्हिच इज अ नेचुरल स्टिमुलेंट। अब ये जो जनता है, ये आई एम अ मिलेनियल, आई एम माय 30s, अर्ली 30s, नो शाई शिट। मैं जब बड़ा हुआ तो शक्तिमान हम पास देख के बड़ा हुआ। शक्तिमान हम पास में शाम में चाय का टाइम होता था। आज जो बड़े हो रहे हैं वो नेटफ्लिक्स प्राइम देख के बड़े हो रहे हैं। उसमें क्या दिखता है हाथ में? क्या? कॉफी। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ सब कल्चर आल्सो। इट्स अ पार्ट ऑफ द इवॉल्व्ड कल्चर। एंड नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड, मैं बैक उस पे आ रहा हूँ। चाय इज एन अमेजिंग थिंग फॉर कम्युनिटी। घर पे बैठते रहते हैं, चाय पीते हैं, बिकॉज दैट्स एन इमोशन। बट कॉफी इज प्रोडक्टिविटी। हाँ, मतलब रिलेट करते तो बोलते प्रोडक्टिव, चल भाई थोड़ी कॉफी पीकर आते हैं, चलो काम करेंगे उसके बाद। उसे पता है ना नींद नहीं आएगी। चाय से पीने के बाद, चाय में से होते चल यार शाम को कहीं घूमने चलते, चाय पीकर आते हैं। बट कॉफी पीकर आते कोई नहीं बोलता। कॉफी पी के आते तब बोलते जब आप हाँ काम करना हो, उसके बाद काम करना हो, प्रोडक्टिव करना हो। और ये चीज अब जो तुम ये बोलो ना कि कूल वाला नेचर, वो भी कॉफी में है। आज फॉर एग्जांपल a lot of coffee places in the country today do amazing business between 7 to 11, including us, PM, which is weird. Who drinks coffee between 7 to 11? It's weird ना, कैफीन है भाई, नींद नहीं आएगी। मैंने उस दिन 11:30 बजे रात को पिए। डॉक्टर रिकमेंड भी नहीं करते भाई 7 बजे के बाद पीने के लिए, but नहीं, just because we love it and nobody should stop it. And I drink at 9 and I still sleep at 12. अब मेरा पैलेट उसको अलाउ करता है, एंड प्रोबब्ली फॉर अ लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इट अलाउज। परफेक्ट है। व्हाट आई मीन टू से इज कि इट्स वेरी, नाउ द कंट्री इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग। द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी इवॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ कॉफी। वी आर जस्ट कैचिंग विद द कल्चर। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। एंड नाउ द टाइम हैज कम व्हेन वी विल रियलाइज कि भाई इंस्टेंट कॉफी नहीं पीना है, बिकॉज वो कॉफी फ्रोजन है, वो स्टेल है। ये चीज यूएस में 1980s 1990s में कल्चर था। Now you tell them in the Western countries. Instant coffee. हाँ मतलब मैं भी जब out. Yeah. They'll judge you if you drink instant coffee. Yeah, exactly. उधर like I was staying in a hostel, तो वहाँ पर भी उन्होंने मशीन लगा रखा था beans वाला. The moment you say I drink instant, I give you in writing, they'll judge you. Okay. And you drink instant there because there is no way. India में instant क्यों पीते हो? या तो 300 की कॉफी है या तो 25 की कॉफी है, कुछ मिलता ही नहीं बीच में। बीच में है ही नहीं, सेगमेंट ही गायब है। तो 25 की पी लोगे ना फिर, ठीक है। 25 की बन जाती है घर में। हाँ। कहावत है ना हमारे यहाँ, नई मामू से काना मामू। But that was very interesting. But like I was looking at your journey as well. IIT गए, फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में काम किया, फिर कॉफ़ी कर दी स्टार्ट। ये वाली थोड़ी जर्नी एक्सप्लेन करो कि भाई पेट्रोलियम से क्या, वो जो
खोजने का जो होता है, बिकॉज इन पेट्रोलियम एंड माइनिंग स्पेशली यू गो अंडरग्राउंड, एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मिनरल्स, तो वहीं से वो कीड़ा जागा कि भाई कॉफ़ी को भी खोद खोद कर निकालना है, या क्या था एग्जैक्ट वो प्रोसेस? एंड आईआईटी जाने का प्रोसेस क्या था? अच्छे स्टूडेंट थे शुरू से, क्या था? अरे यार ये तो क्या बताऊँ ये भी कांडी है। तो आईआईटी जाने का से यार शुरू में तो आईएएस बनना चाहता था, बिहार से हूँ। हम लोग तीन ही चीज़ बनते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस। या आईएएस, और सबसे बड़ा सपना आईएएस होता है। तो आईएएस ही बनना था। 10वीं तक तो यही सोचा था, फिर 11वीं आ गई तो फिर सोचा नहीं इंजीनियरिंग कर लेते हैं। फिर देखा फैड है, फैड थी आईआईटी की, अब बिहार से है तो फैड आईआईटी की पीछे दौड़ गए। तो 12वीं में अच्छा किया स्कोर 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन आईआईटी नहीं निकला। तो एडमिशन ले लिया मैंने स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब पैसे थे नहीं माँ बाप के पास कि मुझे बाहर भेज पाए, तो बाहर तो नहीं जा पाया। तो ऐसा हो गया कि मैं गया एडमिशन लेने के लिए उस इंजीनियरिंग कॉलेज में, सिविल इंजीनियरिंग मिला था मुझे प्रोसेस टेक्नोलॉजी में। पर यार जाते साथ ना मुझे समझ नहीं आया वो। तो मैं गया था वहाँ पे फीस जमा करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जमा हो चुके थे मेरे काउंसलिंग के समय पे। पर वहाँ गया तो मैं, रंगोली बनी हुई थी, मैं रंगोली पे चढ़ गया। अब रंगोली पे चढ़ते हो तुम क्या करते हो? रंगोली होते हैं। अच्छा ओके, नहीं आई थॉट देयर वाज सम कॉन्नोटेशन टू इट। तो हर रंगोली पे चढ़ गए, जब होते हो मस्ती में बिगाड़ देते हैं थोड़े, क्या करते हो सबसे थोड़ा सा कलर स्प्रेड कर देते हैं इधर उधर। हाँ तो क्या करते हो तुम? पहले देखते हो गलती हो गई, किसी ने देखा तो नहीं, हाँ देखा तो निकलो। हमने वही किया, चारों तरफ देखना शुरू किया, किसी ने देखा तो नहीं। आँख पड़ गई बुलेटिन बोर्ड पे। अब बुलेटिन बोर्ड पे एक नोटिस लगी थी, नोटिस पे लिखा था कि वो रंगोली इसके लिए बना था बिकॉज एक आईआईटी का बंदा आ रहा था वहाँ लेक्चर देने के लिए। लग गया कीड़ा कि भाई मैं ऐसे कॉलेज में आ रहा हूँ जहाँ पर आईआईटी वाले को इज्जत मिल रहा है, ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने पैसे दिए नहीं, डॉक्यूमेंट लिया वापस पटना, भगवान का दिया हुआ। अगले दिन रिजल्ट आ गया एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस का, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का, 100% स्कॉलरशिप, 100% हॉस्टल फ्री, सब फ्री। माँ बाप को बोला कि भाई हो गया, पढ़ेंगे तो यहीं 1 साल और। वैसे कहानी शुरू हुई, कॉलेज गया, वाज वन ऑफ द लोएस्ट रैंकर्स इन कॉलेज। आईआईटी में फुल स्कॉलरशिप मिल गया? नहीं, इसमें मिला। अच्छा, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, वो क्या होता है? कोचिंग। अच्छा कोचिंग, ओके। ड्रॉप बेसिकली ड्रॉप ईयर। हाँ बोले भाई नहीं यहाँ तो नहीं जाएंगे, ड्रॉप लेंगे। ड्रॉप लेने के पैसे नहीं, और इत्तेफाक ऐसा कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने 100% स्कॉलरशिप दे दिया। तो मैंने बोला अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हॉस्टल फ्री, पढ़ाई फ्री, और क्या चाहिए? तो हॉस्टल फ्री, पढ़ाई फ्री, 1 साल ड्रॉप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया, हो गया आईआईटी। जब आईआईटी किया तो वेरी लो रैंक। आईएसएम धनबाद में एडमिशन मिला पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। अब आईआईटी आईएसएम धनबाद कहलाता है वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन माय लाइफ एट दैट पॉइंट। तो ले लिया एडमिशन, लोएस्ट रैंक था, पर व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई वाज अ टॉप 5 स्टूडेंट। बढ़िया हो गया कॉलेज में सब कुछ, पहला बंदा प्लेस हुआ कॉलेज से, 6 इंटर्नशिप कर ली ऑल ओवर इंडिया। Was the first student to be selected to be presenting undergraduate paper in one of the conferences, largest conference in the world in the US. चाइना भी ट्रिप मार के आया एज इंडियन डेलीगेट इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस। बहुत बढ़िया हुआ, प्लेसमेंट हो गई, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़ लिया, और वन ऑफ द बेस्ट पैकेजेस ऑल्सो। 8.5 साल नौकरी करी, ये जर्नी है। इसके बीच में थोड़ी सी पॉलिटिकल मार्केटिंग पढ़ ली। आई स्टडीड मास्टर्स इन पॉलिटिकल मार्केटिंग फ्रॉम इटली। ओके, आई आल्सो स्टडीड डिप्लोमा इन लॉ, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस लॉ। तो पेट्रोलियम से मार्केटिंग का क्या मतलब लिंक कैसे हुआ? बिकॉज ऑर्डिनरी पाथ नहीं है, तो वो कैसे? ऑर्डिनरी पाथ तो तेल से कॉफी में आना भी नहीं है। नहीं यार, आई थिंक आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन। आई ऑलवेज वाज क्लियर कि मेरी लॉन्ग टर्म विजन क्या है। मैं पर्सन हु प्लान्स 20 years 30 years ahead. आई नो व्हाट आई एम गोना डू इन 2035. एटलीस्ट द डायरेक्शन इज देयर, राइट, कि ये करना चाहता हूँ। लास्ट में एज एन इंस्पिरेशन सेगमेंट रखूंगा, 2035 में ये कीजिए। अपनी जिंदगी सबकी अलग अलग है, मेरी एक विजन है वैसे ही। हाँ, तो मेरी विजन है कि 35 में ये करना है, 50 में ये करना है। हाँ। अपनी उम्र के नहीं, साल में। तो आइडिया सिंपल था कि आई न्यू विच डायरेक्शन आई वाज हेडिंग टू, सो दैट गिव्स अ क्लैरिटी व्हेन यू नो विच डायरेक्शन यू आर हेडिंग टू। दैट्स व्हाई इन थोड़ी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बाद आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी, largest oil and gas field technology company in the world. Was traveling a lot. फिर थोड़ा मन हुआ कि लॉ पढ़ लेते हैं। मैं फैमिली बैकग्राउंड केम फ्रॉम लॉ, ऑलवेज was curious, so डिप्लोमा पढ़ लिया लॉ में alongside the job, never quit my job. So I studied entrepreneurship and business laws, company formation, entrepreneurship, compliance, private limited, समझ आ गया, LLC, ये समझ आ गया धंधा होता क्या है बैकग्राउंड पे। फिर जॉब करता ही चला गया, उधर भी चेंज हो रहे थे, ऑपरेशन से शुरू किया था, फिर सेल्स गया, मार्केटिंग गया, टेक गया, मैनेजमेंट गया, स्ट्रैटेजी गया, लास्ट रोल एचआर
करके छोड़ा हूँ, तभी शुरू किया। HR भी किया हुआ है। HR भी किया। जब वो सब कर लिया तो फिर समझ आया कि भाई थोड़ी सी पॉलिटिकल मार्केटिंग पढ़ना था थोड़ा, जॉब तो छोड़नी नहीं थी, और वर्ल्ड का पॉलिटिक्स समझना था, क्योंकि सपना IAS का था पहले इनिशियली 10th वो तो तक खैर का। चलो बहुत पहले खत्म हो गया, बिकॉज मुझे पता था कि मतलब एक टाइम पे था कीड़ा, एक टाइम पे था कीड़ा था, तो शायद वही पॉलिटिकल। करेक्ट, वो तो कॉलेज के समय के बाद से खत्म हो गया कि भाई मैं फिट इधर नहीं होता हूँ, मैं फिट इधर होता हूँ, मेरा फिट क्या वो काबिलियत वाला फिट था या करना इंटरेस्ट वाला, करने वाला? तो काबिलियत पे तो चैलेंज कभी नहीं झेला मैंने। तो नहीं, मैं जानना चाहता था बिकॉज बहुत सारे लोग ना इंटरेस्ट होता है बट वो काबिलियत नहीं होती। जैसे मेरा मैथ्स खराब था, अब मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि पॉजिटिव बोला करो कि तुम बाकी चीज़ों में अच्छा, मैथ्स को क्यों ऐसे नेगेटिव कॉनोटेशन मत लेकर चलो। बट बच्चों के दिमाग में यही होता है कि यार अच्छा तो लग रहा है बट वो कन्विक्शन नहीं होता कि कर लेंगे। इतना कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ लेंगे, कर ही नहीं सकते, 15 बुक्स तो हम पढ़ ही नहीं सकते यार। हम यार तो इसलिए मैंने पूछा काबिलियत था या वो था, मतलब एक नहीं आई गेट इट यार। देखो मुझे तो नहीं लगता है, एक तो मेहनत करने की आदत शुरू से है, दूसरी IIT चले ही गए थे। मेरे लिए फाइनल ईयर में जब जॉब मिल गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, डायलेमा था कि IAS करें या जॉब करें। हाँ, बिकॉज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मतलब सारे लोग IAS कर रहे हैं, प्लस पेरेंट्स चाहते थे। तो मैंने रियलाइज कि मैं उस सेटअप में फिट नहीं बैठता। बहुत फास्ट पेस्ड मूव करने की आदत है। हाँ। I want to do a lot of things in my life in a variety of ways, and that's an amazing thing to do, amazing responsibility. But the impact I want to create may be higher for me based on my personal preferences. इसलिए blindly follow कभी किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए, and that's what I believe in. I talk to my mentors, my coaches, who wear IASs themselves, and then I realized कि ये segment मेरे लिए fit नहीं बैठता है. So ये segment बैठेगा, and that's why I went into particular sector, and that's why I kept changing. I mean, in 8.5 years, I worked in 5 different countries, in 7 different cities, in 6 different job functions. Because I wanted something in my life, and that's what I am doing, and I'm clear what I want, right? So ये हो गया, इसी कारण से मार्केटिंग भी पढ़ ली। बाकी चैलेंज में तो जो मज़ा आता है, चैलेंज कर दो, कर सब कुछ लेंगे। अब कर लेंगे। नहीं, बहुत मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। बट अब पता है बात कहाँ आती है, मेरी बात सुई मेरी कहाँ अटक रही है कि आप पेट्रोलियम में घुस गए, बहुत गड्ढे खोद लिए, सब कुछ इंटर्नशिप भी कर ली, रिसर्च पेपर्स भी कर लिए, बहुत अवार्ड्स भी जीत लिए। बट अब कॉफ़ी जो आपने बताया जैसे 2019 में शुरू किया कॉफ़ी पीना, तो एकदम ऐसा क्यों सोचा कि भाई बिजनेस स्टार्ट करना है? मतलब क्यों करना था? जॉब में क्या नाखुश थे, क्या था एग्जैक्ट रीजन? जॉब में तो नाखुश नहीं था सूर्या। I think the job gave me a lot. Sorry, I'm asking very on the face. I think very practical question you are asking. Yeah. Because I see a lot of people today getting frustrated and then starting up. Yes, because बहुत लोग ना इसलिए बोलते हैं कि यार ये बॉस बेकार है, या पीयर प्रेशर में सुनते हैं कि यार मैं स्टार्टअप में मजे कर रहा हूँ, तो लोग कर देते हैं स्टार्ट, बाद में पता लगता है भाई इधर तो 2400 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ता है। मेरे साथ भी अभी यही हो रहा है। बट आपका क्या था उस टाइम पे? क्लैरिटी थी या आपने भी बेसिकली वो फैड, क्योंकि उस टाइम पे शायद बूम भी होना स्टार्ट हुआ था स्टार्टअप कल्चर बहुत। जैसा मैंने बोला सूर्या, मैं इंस्टेंटेनियस डिसीजन कभी नहीं लिया। आई एम अ प्लानिंग पर्सन। मैंने 2016 में प्लान किया था 2035 में क्या करूँगा। आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन 2025, आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन 2035। जिंदगी किधर ले जाती है ये ओपन है, मैं उसको नहीं बदल सकता, लेकिन डायरेक्शन पता है मुझे। So I know what I'm hitting. So when you know when you're hitting, you know, I always say to people, a man without a plan is like a headless chicken. You run around and get nowhere. You should have a plan. And when you have a plan, the plan's reason is to give you a direction. Then you're not confused waking up at 7 a.m. in the morning. क्या करूँ क्या भाई? क्यों कर रहा हूँ? मेरे साथ आज तक नहीं हुआ ऐसा, आज तक नहीं हुआ. Right from moment ever since I remember from actually IIT preparation days, I knew every single day and I have known every single day मैं आज क्यों उठ रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, because मुझे पता है कि मैं आज को तो चेज ही नहीं कर रहा. मेरा तो फ्यूचर 2035 है. 2035 में सोचूंगा, मेरा फ्यूचर 2050 है. And that's what inspires you. People don't. My future to me does. Right? So under your question, my job going back was amazing. I love my job. कौन सी जॉब आपको 5 कंट्री घुमाती है 8 साल में? कौन सी जॉब आपको 6 प्रमोशन देती है? I was making $1 crore a year sitting in India. Crazy. I loved it. Managing a team of 650 people, wow. Multinationals in India.
इसके पहले रोमानिया में काम किया, यूएस में काम किया, सऊदी में काम किया, ट्रैवल अराउंड सेवरल सिटीज एंड कंट्रीज. द वर्क कल्चर मेड मी ट्रैवल टू 25 कंट्रीज. दैट्स हाउ आई बिकेम अ ट्रैवल बफ. राइट? आई लव्ड इट. व्हाई विल आई क्विट दैट? नो. For me, it was never a decision I hated a lot. I loved it, यार. मुझे I'm a people person. My last job role was HR. और लोगों के ट्रेनिंग, प्रमोशंस, प्रोग्रेस देखना था. मेरा तो इनहेरेंट है वो. इतनी खुशी मिलती थी मुझे. Then I had to drop it. Reason is simple. Is that what I envision in life. So answer to your question is not a fad. It's not an instantaneous decision. I knew that I wanted to start. But मुझे 2021 तक ये नहीं पता था करना क्या है. स्टार्ट करना है बट करना क्या वो नहीं पता. ये नहीं पता था. तो you were a headless chicken back then. You were sure that you had to run, but वो direction was not true. I did have a plan. Headless chicken तब होता है सूर्या जब plan ही ना हो. So it's about not knowing what startup do you want to do or what industry. Is it not the same as not having the plan? No, because then you are clear कि तुम्हें करना है. For example बताता हूँ कि तुम्हें एग्जाम ले लो. IIT का लेते हैं, बहुत सिंपल है. 3 सब्जेक्ट है. अच्छा, ओके. समझाने में अच्छा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. 3 एग्जाम देने हैं आपको IIT में. अब आपको पता है कि IIT में क्वालिफाई करने के लिए तीनों इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कट ऑफ क्रॉस करने होंगे और एक टोटल कट ऑफ क्रॉस करना पड़ेगा. करेक्ट? आपको ये पता है, कैसे करना है ये नहीं पता है. तो उसके लिए कोचिंग जाते हैं? नहीं, कोचिंग नहीं. कोचिंग जाके क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना सूर्या. कोचिंग इज हेल्पिंग यू आउट. कैसे करना है कहने का मतलब है कि इसे मेरा मैथ्स वीक है. मेरा भी मैथ्स वीक था, जैसे तुम्हारा वीक था. अमंग द 3 एंड आई हैव नो शाय टेलिंग, प्राउडली बोलता हूँ. तो मैथ्स वीक है, पर मैथ्स का कट ऑफ मान लीजिए 27 मार्क्स है. ठीक है. लेट्स से आउट ऑफ, आई डोंट इवन रिमेंबर अभी क्या चल रहा है. लेट्स से आउट ऑफ 120 27 इज द कट ऑफ. अभी 27 कट ऑफ लाने के बहुत तरीके हैं. तुम 4 ही टॉपिक पढ़ो, इतना पढ़ लो ब्रिटिश वाले कि 27 मार्क आ जाए. फोकस ही नहीं करो फिर मैथ्स में. मेरा केमिस्ट्री वीक था. वाज ऑल इंडिया टॉपर इन केमिस्ट्री इन 12th स्टैंडर्ड. राइट? सो केमिस्ट्री में मैं लाता हूँ ना 120 में 117 नंबर. तो कवर अप. सो यू हैव अ प्लान, यू हैव अ डायरेक्शन. कैसे करना है? यू कैन नॉट पुट गोल पोस्ट्स. अब अगर तुम ये बोलोगे मैथ्स में भी 60 नंबर लाने हैं, तुम्हारा है ही नहीं स्ट्रॉन्ग, तुम फंस जाओगे फिर. और या फिर तुम ये बोलो जब तक कि मैं मैथ्स में 60 नहीं लाऊंगा मैं IIT में नहीं जाऊंगा. दैट्स आल्सो रॉन्ग. बिकॉज़ योर गोल इज नॉट टू स्कोर 60 in mathematics. Correct. And that's what happens with businesses. My point is in life, you will not know which direction you are heading. The moment you will not know कि exactly क्या करना है, direction पता होना चाहिए. मैं कहता हूँ तुम्हें बिजनेस शुरू करना है. अब तुम ये बोलो कि मैं बिजनेस के बारे में तब सोचूंगा जब मेरे पास प्लान आएगा, एक आइडिया आएगा, तब you're already late. Gone. क्लैरिटी नहीं है ना आपको. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके जिंदगी में हिट हो जाता है इंस्टेंटेनियसली. आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ हुआ है. बट फॉर मी, पीपल हु आर वेरी डिलिजेंट, हु आर वेरी क्लियर इन व्हाट दे वांट. कैसे करना है वो फिगर आउट होता है, क्या करना है वो भी फिगर आउट होता है, बट डायरेक्शन पता होना चाहिए. सो माई पॉइंट इज टू आंसर योर क्वेश्चन, बस क्लियर. मुझे पता है मुझे 2035 में क्या करना है, 50 में भी क्या करना है, कैसे करना है नहीं पता. मतलब उसके लिए आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, बट वहाँ कैसे, हाँ वहाँ पहुँचना कैसे, उसके रास्ते अलग होंगे सूर्या. बट जैसे लोगों का जनरली मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि अब जैसे आपने बहुत लॉन्ग टर्म विजन की बात कर दी. लोग लॉन्ग टर्म विजन में क्या सोचते हैं कि भाई इतना पैसा छापना है. मेजरली ये मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बुगाटी होनी चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए, एक यूरोप में मेरा एम्स्टर्डम में मस्त एकदम कैनाल ग्रास घर होना चाहिए मस्त वाला. बट आपका क्या है वो विजन इन टर्म्स ऑफ, इज इट बिजनेस, इज इट मनी, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? तो एंड जैसे आप, ये तो आपने IIT वाला एग्जांपल बहुत अच्छा समझाया, बट जैसे आप बोलते हो कि बिजनेस करना है वो एक गोल है एक, लेकिन उसको करने के डिफरेंट इंडस्ट्रीज. आप D2C में जा सकते हो, आप कॉफ़ी में जा सकते हो, आप F&B में जा सकते हो, या फैशन में जा सकते हो, किसी रिटेल ई-कॉमर्स किसी में भी जा सकते हो. वो आपने कैसे चूज़ किया, सबसे पहला क्वेश्चन. दूसरा, आपका वो 2035 वाला, आप उसको डिकोड कैसे कर रहे हो? तो देखो होता क्या है सूर्या, मैं पीछे से शुरू करता हूँ, तुम्हारे इस आंसर पे आता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ. तो वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. ठीक है, इफ यू जस्ट वॉक अराउंड एंड टॉक अराउंड, यू विल फील दैट पीपल चेंज देयर आइडियाज एवरी डे. एग्जैक्टली.
इंटरेस्ट भी चेंज हो जाते हैं, होता है। बिकॉज एक नया फैड आता है, एक नया ट्रेंड आता है, एक नई मूवी आती है, एक नया एक्टर आता है, एक नया एड आता है, खत्म। करेक्ट। इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन यू नीड क्लैरिटी, एंड पीपल हु गेट सक्सेसफुल आर द पीपल हु आर क्लियर इन व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट। बहुत कम लोगों के लिए आता है। कौन बनेगा करोड़पति के शो पे ही आता है ना, या जो जीतेगा वही सिकंदर, जैसी जो भी मूवीज होती होंगी, जो सिकंदर तो अच्छी मूवी थी। तो माय पॉइंट इज कि दिस डजंट कम ओवरनाइट। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि तुम्हारे दिमाग में ये क्लैरिटी बिल्कुल क्लियरली होनी चाहिए कि तुम जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, राइट? पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ये कि डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में क्लैरिटी कैसे आएगी? जब आपको डायरेक्शन पता होगा। अब अगर मैं ये बोल दूं कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ही चाहिए, क्यों चाहिए? सवाल ये पूछो। मेरे पास एक ऑलरेडी फॉर एग्जांपल Hyundai Ion है, मुझे BMW क्यों चाहिए? क्योंकि बाकी लोग वैल्यू करेंगे इस सोसाइटी में। आपने BMW ले लिया, आपको Lamborghini क्यों नहीं चाहिए? आप समझ रहे हो किस डायरेक्शन में हो? आपने Lamborghini ले ली, आपको जेट क्यों नहीं चाहिए? आपने जेट ले लिया, आपको स्पेसशिप क्यों नहीं चाहिए? जर्नी नेवर एंड्स, नेवर एंड्स, एंड द मोमेंट यू फॉल इनटू दिस ट्रैप यू स्टक। सो द राइट, इन माय ओपिनियन, and I'm very humble, I am not saying this is right or wrong, all I'm trying to say is to answer the basic question, आपको जो चाहिए क्यों चाहिए? आपकी जो एस्पिरेशंस हैं क्यों हैं? मेरे एस्पिरेशंस थे, मुझे अपने माँ बाप को एक घर गिफ्ट करना था, बिकॉज दैट वाज एन इमोशनल डिसीजन, मैंने किया, राइट? वो एक रीजन था मेरे पास। बट क्या मुझे बॉम्बे में घर लेना है कि नहीं लेना है? दैट्स अ फाइनेंशियल डिसीजन। ले सकता हूं, अब भी ले सकता हूं। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरे अगले 10 साल के प्लान क्या है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो जो आप कहते हो ना कि किस नजरिए से आप देखना चाहते हो चीजें, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव है, कभी सब्जेक्टिव नहीं होता। जो आपके लिए ट्रू है मेरे लिए नहीं है। आपको कॉफी में चीनी मिलानी है, आप मिलाइए, मैं रोक भी नहीं सकता, मैं रोकना भी नहीं चाहता, मुझे नहीं मिलाना है। समझ रहे हैं? आपको अभी जाके BMW लेना है बिकॉज आपकी सोसाइटी में स्टेटस बढ़ेगी, आप लीजिए। मुझे नहीं चाहिए BMW, मुझे उसी पैसे से एक NGO खड़ा करना है ताकि मैं ज्यादा लोगों को इंपैक्ट कर पाऊं। That's my decision, that's your decision. Both are right in our own lenses. Correct? अब मुझे क्या चाहिए जिंदगी में? मेरे कभी भी फाइनेंशियल एस्पिरेशंस नहीं रहे। अगर रहते तो मैं ना तो जॉब छोड़ता, स्टेबल लाइफ छोड़ता, IAC बन जाता, lot of things would have happened. I run an NGO as well since 2017. Okay. And my bigger purpose in life is to impact the country. And that's a reality. The reason why I'm into business today is that I can give employment. I am solving a mass problem. That's why I chose this. It's not any other business. In my business, we're disrupting the way coffee is today in India. And that inspires me every day. Puts me up. कि अभिजीत करना तो तुझे ही है, अब करेगा तू ही, है ना? जब आपके पास ये मोटिव होता है ना कि करना तुझे या तू करेगा, तो आप करोगे और तभी मुकाम खड़ा करोगे। कोई भी बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस को उठा लो, वो पेपर पे नहीं बनते, मैदान में बनते हैं। मैदान में तभी तुम सक्सेसफुल होते हो जब तुम उतरते हो। कैसे बनोगे? बना लिए मैंने, 1.5 साल तक पेपर पे ही बनाया प्लान्स। उतरा मैं जून 2022 में था, और जो मजा उसके बाद आया ना, कह नहीं सकता। सो माई बिगर पर्पस इन लाइफ इज टू इम्पैक्ट द कंट्री। I want to see country in a certain place, couple of years, couple of decades down the line, and that inspires me. Not a Bentley, not a private jet. So I think that's short-lived. अब लोगों के अपने अपने, मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हें नहीं हो, मेरे नहीं है, मुझे कुछ और चीजें इंस्पायर करती है। अभी हमने पहला बरिस्टा हायर किया हमारे NGO से। Okay, wow. And our NGO, which is collaborated with an orphanage in Bombay, in Chembur. And there are 21 girls in that orphanage, and one of the girls from that cohort joined us as a barista. For me, that's a proud moment. It's incredible. I can't tell you how happy I am, or I was, or I proclaim to the entire team, because she is not only, her name is Vishakha, she not only is inspiring a particular genre of people and her group that she can, and she's making money for herself. She's becoming an example to anybody and everybody that will ever know her. And that's impact.
That's all I want to say on this. नहीं, that was मतलब काफ़ी you put me into a lot of array of thoughts, but this aspect where you know that NGO से उठकर एक आपके ही उस पे it kind of if I had to relate this तो वो होता है ना जैसे आप इस कॉलेज से पढ़े एंड उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए, वो वाली चीज़. बट that also makes a lot of colleges happy कि But that is very different, Surya. कॉलेज से पढ़ के आप कॉलेज में बन गए, यहाँ आप NGO of course, which is a different entity. Exactly. और आप एक दूसरे कंपनी में आ गए. Company is not only me, ना. Company is not Abhijit. Neither the NGO is Abhijit. No. Company is a private limited company. NGO is a registered society. They have two different entities. Right now, two entities are talking. Abhijit has not hired her. The company has hired her because she is competent. That's what I want to say. It's not that she didn't have an option. She did. And it's a privilege for the company to hire her because it's the right talent meets demand. Right opportunity. Right opportunity. How do you actually manage the day-to-day operations? एक कैफ़े, आप जैसे कैफ़ेज़ हमें पता है, तो आपका जो अब कॉफ़ी का ब्रांड है उसको हम क्या बोलेंगे? जो ये स्टॉल्स होते हैं क्या बोलते हैं? स्टॉल्स बोलते हैं, कैफ़े बोलते हैं, क्या एग्जैक्टली बोलते हैं? एंड क्या फंक्शनिंग रहता है डे टू डे इन टर्म्स ऑफ हायरिंग न्यू पीपल? बैक एंड प्रोसेसेस होते हैं, ऑर्डर्स डिलीवर करने होते हैं, तो वो कैसे सारा फुलफिल होता है एंड वो सीखा कैसे? लाइक डू यू हैव सम मेंटर्स? कैसे पूरा ऑपरेशन कैसे पैन आउट होता है? Right, so I'll answer on the last side. So, Surya, before starting this company, I went around the country. Starting this company, went around the country. So, that's a good one, huh? Yeah. Starting this country. So, damn, I wish I was there then. But yeah, so went around 20 cities, 12 states, met thousands of people around the country to figure out that there is a gap, there is a problem. And the problem is not Abhijit, the problem is of the country. कि भाई problem है और मेरा लव है, इस पैशन है इसके लिए, एंड देयर इज अ प्रॉब्लम. धंधा ही बनेगा और ये धंधा अभिजीत के लिए नहीं बन रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है देश का. एंड दैट्स व्हाट वी गॉट इनटू दिस. नाउ व्हाट हैपेंड इज आई लर्नड ऑन द गो, लर्नड ऑन द वे, with right people, with right meeting and seeing and talking and listening and stuff. काफ़ी कुछ on the job किया है, figured out. And now my 8.5, 9 years experience in corporate taught me a lot in that sense कि कैसे operations manage करते हैं. फाइनेंस अपना है, सेल्स अपना है, स्ट्रैटेजी अपना है, एचआर अपना है, मैनेजमेंट, इतने जो जॉब अलग अलग फंक्शंस में किए ना, कर रखा था. डायरेक्ट यूज हुआ. अब अपने हमारे आउटलेट को हम लोग डेक कहते हैं, DECK. ओके. So we are a QSR, quick service restaurant coffee outlets. It's a grab and go, take away, delivery outlet. So you can't sit मतलब आप. Very tiny space for sitting, couple of people, 4. You can't work from there. Okay, not with those fancy laptops. Not with those fancy laptops. This is meant for community. Okay. We envision ourselves, and we are today wherever we are the neighborhood coffee place. In modern language, we are the modern coffee joints of the country. So we want to be known as, we want to be seen as the neighborhood. तुम्हें आप कॉफ़ी चाहिए, आप अब कॉफ़ी आओगे. आपको डेट्स पे जाना है, बिजनेस मीटिंग्स जाना है, कुछ भी और करना है, आप कैफे जाइए. I don't have a problem. Because then you're not drinking coffee, you're using the real estate. Amenities वगैरह. अगर आपको कॉफ़ी पीना है, right prices पे, one of the best coffees that India produces, आप अब कॉफ़ी आएंगे. Got it? Clear segmentation. That's our clarity is right up there. That's why we want to be your coffee neighborhood coffee place wherever we are. Inspire community. एक बात बताओ सूर्या, कैफे जाते हो, कभी अनजान आदमी से बात की हो? नहीं. अकेले जाते हो, दोस्त के साथ जाते हो, अकेले जाते हो, लैपटॉप खोलते हो, दोस्त के साथ जाते हो, उससे बात करते हो. हमारे यहाँ अनजान आदमी दोस्त बन जाते हैं, बातचीत करते रहते हैं. Because it's open. जैसे चाय की टपरी में भी होता है. Exactly. जैसे कॉफी जॉइंट्स में यूरोप में होता था. हाँ, अभी भी होता है. मतलब ऐसे ही हाय हेलो करके नॉर्मल इंट्रोज तो कर ही लेते, कैफे में नहीं करते आप. बिकॉज आप लैपटॉप लेके जाते हो ना, एंड वो बोलते चार्जर ऑन कर दे, बस इतना हेल्प मांगते हो, उससे ज्यादा स्मॉल टॉक भी नहीं करते हो आप. कुछ नहीं ना. अब क्योंकि एक गैप है. सो कैफेज इन माय अंडरस्टैंडिंग डजंट इंस्पायर कम्युनिटी बिल्डिंग, कैन नॉट इंस्पायर कम्युनिटी बिल्डिंग. आप वहाँ अकेले जाते हो, अकेले आते हो, या तो किसी के साथ जाते हो, उसी के साथ बाहर आते हो, अकेले आते हो. दैट वाज अ गुड वन. पर यहाँ आप कभी हमारे वर्सोवा आउटलेट आओ,
you will see the vibe is crazy. A lot of people have met there. A lot of actors have found jobs there. So that's a creative area. That's what we inspire. That's why we call our outlets at Deck. Deck क्या होता है? Deck is a heighted race बोट का place deck जैसे जहाँ से आपको दुनिया दिखती है. That's what happens here. just like a machan. Just like a machan. तो Deck why is don't like you a call machan. it a machan? Because Deck is more relatable with coffee. सुनने में भी अच्छा लगता है. मचान भी कर सकता था, लेकिन मचान पे जनरली लोग समझ नहीं पाते एक तो. अल्कोहलिक कोरिलेशन ज्यादा है मचान से. हाँ. So you have to be careful with the चलो words. चलते हैं. या. है ना? Yeah. So that's why. और डेक से थोड़ी सी कॉफी वाली रिलेशन ज्यादा है. तो और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भी लगता है. सोफिस्टिकेटेड तो मैंने नहीं सोचा, उतना दूर तक सोच नहीं पाया. लेकिन मेन ये है कि फॉर एग्जांपल ब्रू, BREW, राइट? ब्रू इज अ वेरी वर्ड रिलेटेड टू बियर. Honestly, it should be related to coffee. But then ठीक है, you have to be careful when we're choosing our names also. अब coffee क्यों? Our company's name is Brew Bay Innovations Private Limited. Okay. So our initial name, company, we wanted to be Brew Bay as अच्छा, our okay. company's name. Okay. But then we thought it's confusing हाँ. because Brew Bay अगर मैं बोलूँगा लोग बियर ही मान लेंगे इंडिया में. हाँ. It's very confusing. That's why we moved and switched. So I think those are some of the reasons why we were careful on this, and then that's why Deck. It's a place where the world for coffee opens up to you. That's why the Coffee Deck. That's interesting. But पहला जैसे आपने डेक एस्टैब्लिश किया, वो कैसे हुआ? थोड़ा सा उसका जर्नी. एंड अब कितने स्टोर्स हैं? वो कैसे एक, अगर मेरे को आज इंडिया में ब्रांड खोलना है F&B सेगमेंट में स्पेशली, तो क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? एंड आपने कैसे किया? अपनी जर्नी के थ्रू वो चीज़ कोड कर दीजिए. Just for like explain it to us in a way that you will explain it to a 10-year-old, 12-year-old. अगर उसको आज स्टार्टअप करना है, बिकॉज मैं देख रहा हूँ 14 साल के बच्चे भी काफ़ी कोडिंग कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो अगर उनको भी सेम एम्बिशन है, हाउ डू दे फॉलो दैट स्टेप बाय स्टेप? देखिए सब, मैं तो यही कहूँगा सूर्या कि कुछ भी शुरू करने से पहले थोड़ी पढ़ाई कीजिए. हमें तो 1.25 साल लगा, 1.25 years, a year and a quarter. पढ़ाई कीजिए मतलब किताबें पढ़ गए? नहीं, it includes everything. You read about it, you talk about it, you talk about the problem, you listen to a lot of podcasts, जैसे हम लोग अभी बातें कर रहे हैं. You talk to industry experts, you get a feel of it. Don't go by the fad of it. Feel और fad में बहुत फर्क है. So you get a feel of it when you immerse yourself and work for it. Right? I've worked as part-time baristas while working for a full-time job. अच्छा, you have worked. I wanted to understand the business. अगर मुझे करने में मजा नहीं आएगा तो मैं कंपनी कैसे चलाऊंगा? So I've learned it. I went into it, right? And that's when you get to learn and you feel कि ये फैड है या फील है. फैड है तो कुछ दिन में चला जाएगा. महीने 2 महीने फील में है हो गया. तो वो कीड़ा जाएगा नहीं. कीड़ा और परेशान करेगा. और अगर वो कीड़ा ज्यादा दिन परेशान किया तो ये चीज तो क्लैरिटी हो गई, भाई करना तो यही है. आपको कॉलिंग मिल गई है जिंदगी में. उसके बाद आप बिजनेस प्लान बनाइए, थोड़ा नंबर के साथ खेलते हैं. है कि नहीं? कंपटीशन के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन कर रहा है, करना भी चाहिए कि नहीं चलना चाहिए. इतना बड़ा. अब अगर मैं कॉफी की बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अगर कैफेज ही खोलना शुरू कर दूं तो हजारों कैफेज है इंडिया में. मेरे डिफरेंशिएशन क्या है? कुछ नहीं. तो करना ही नहीं, वो प्रॉब्लम भी नहीं है. इंडिया में कैफेज की प्रॉब्लम है ही नहीं. बहुत सारे कैफेज हैं जो रियल एस्टेट बेच रहे हैं. मेरा वो प्रॉब्लम ही नहीं है इंडिया में. क्यों जाऊं उसमें? क्लैरिटी मिल गई. नाउ ये क्लियर कि सेगमेंटेशन क्या है आपका. थर्ड, प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाइए. अब मेरी सबसे बड़ी लेसन थी कि पहले ही आउटलेट से मैं हमेशा सोचता था कि भाई बनाऊंगा तो परफेक्ट बनाऊंगा. Then I realized, because I came from that planning phase, working for corporates, कि भाई होना तो चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए. Quarterly plan, yearly plan. Then I realized कि होता नहीं है रियल लाइफ में ऐसा जब आप शुरू कर रहे होते हैं. Then I made a MVP, minimum viable product. बनाया अपने वर्सोवा को MVP. धंधा चालू करते हैं पहले. आउटलेट चुना, जगह देखा, उसके लिए क्लैरिटी चाहिए थी. तो रेंट किया वो जगह. रेंट किया वो जगह. वो जगह यहाँ क्यों चुना, उसके बारे में 1 महीने सोचा कि पहला आउटलेट है. Has to be that epitome outlet जो मैं आज से 50 साल बाद भी बोलूँगा कि अब कॉफ़ी यहाँ शुरू हुआ था. So that kind of research happened, everything went across, made sure, because I was bootstrapping initially, made sure everything is right fit, hired the right people in, got the right resources, खुद से जा करके signage खुद लगाया है, अपनी मेन्यू खुद टांगी है, फ्लेक्सेस खुद लगाए हैं, विजिटिंग कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है. ईगो साइड में,
वाइब खुद करा है, because until you do it, you don't know it. That's what happened, right? So बस पहला आउटलेट चालू किया, बहुत प्रॉब्लम्स भी आई because I was not from this industry, right? This industry is not. I'm from oil and gas. It's very different to come in food and beverage. But then learned on the way, did a couple of mistakes, but I think I've been lucky. The God has been kind. Things have fallen in place, and that's June 2022 when we launched our first outlet. Today we are sitting at 6, spread across Bombay. We are launching 4 more this month alone in Bombay, planning to Delhi, Bangalore, and Hyderabad very soon. And the plan is for 100 outlets this year. It's crazy. Wow, that's a lot of outlets. Oh my god. But yeah, I'm sure सही होगा मतलब काफ़ी, because you have planned it long way back, so you're just taking those steps right now. But yeah, now coming to the fun segment where we talk about, where we essentially do a rapid fire segment ताकि थोड़ा सा fun भी रहे, नहीं तो business ज़्यादा हो गया. तो मैं rapid fire start करता हूँ. Are you ready for it? Yalla, let's go. What was yalla? Yalla is let's go in Arabic. Really? Oh wow, you stayed in I stayed in Saudi and sometime in UAE as well. Okay. So yeah, 3 books that you are reading right now. Or do you read it? Reading right now? Oh, reading right now is right now as in not in the podcast, but वैसे. Yeah, no, because I don't think I'm reading anything at the moment. I have to be honest, because the life has been crazy, and that's something I really want to change soon. But you want to say last 3 books that I have read. One of the books that I read was Starbucked. Have to be aware of how Starbucks grew, so that one. The second one I read is The Art of Thinking. Okay. And the third book that I have read recently, I'm not thinking. I can't remember, to be honest. So I'll go with stick with 2. 3 things that you would like to change about your life अगर आपको वो मौका मिले दोबारा. If you have to reinvent yourself, ये 3 चीजें आप change करोगे अपने बारे में. From the past. Whatever it may be. Nothing. अभी past. Past nothing. Current, I want to go back to my workout regime. Okay. I want to go regular to my diets. And I want to sleep at least 6 hours a day. Very simple. Current. Past, nothing. Just been grateful for everything. 3 things that you love except from coffee. I love traveling. I love interacting with people. And I love reading or writing. But reading you'll have to go back a bit. Correct. I still express through writing, through my own blog. Okay. Yeah. Okay. And what do you usually write about? I write about life, lessons, Okay. what I've done wrong, what could be right, and my own experiences. 3 failures or 3 turning points of your life. First one that I spoke earlier in the podcast is my decision to drop and prepare for ITG. Second would be to go, in 2016 I was transferred to Assam, and that changed my life forever, the way I think about life. And third would be this decision of quitting everything. Coming to the I thought coming that's to a good one. turning point, coming to the podcast. That was some shameless integration. That was a good one. You just said coming. I thought why not just plug it in. And 3 things that you would like people to basically keep in mind जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही है लाइफ में, कुछ भी नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, भले वो जॉब हो, कुछ भी हो, या मे बी एक हॉबी या कुछ आर्ट सीखने, क्या 3 ऐसी चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए? If you had to make a reel on it, how would you say that? In a reel style. यार रील स्टाइल पे इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ सूर्या, बट 3 चीजें बोलूँगा very specifically. Number 1, first figure out if it's a fad or if it's a need. उसके लिए समय लगता है. If it's your need or if it's masses need. तुम्हारा need passion है, दुनिया का need business है. ठीक है? पहला बिजनेस है या पैसा है? बिजनेस. बिकॉज यार कोई भी बिजनेस पकड़ लो, इस पे एलैबोरेट करता हूँ. जो बंदा बिजनेस से पैसे के लिए करता है वो बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता. 99.99% of the businesses are not for money but for people. Even today, my business is coffee, but I'm not in the business of coffee. I'm in the business of people. Anything and everything, right? From my employees to my barista partners to the customers to me myself, right? पैसा आता है अगर आपका business strong है, आपके people strong है, and that's what I believe in.
So number 1, feel of ad. Feel of ad or need of ad. Number 2, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं और अगर आप प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, बहुत इंडियंस नहीं आते हैं, मैं भी नहीं आया, कि there's a good enough backing of your parents, of your family. अगर आपको खुद की बुनियाद खुद बना रहे हैं तो पहले बुनियाद बनाइए, ये तो आप स्ट्रगल करेंगे। बुनियाद बनाने का मतलब होता है कि भाई पहले ये फिगर आउट करो, बिजनेस चली ना चली 2 साल जिंदा कैसे रहोगे, पैसे कहाँ से आएंगे? ऐसे नहीं कि हड़बड़ा के निकल लिए। अब उसमें बहुत लोग निकलते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट्स राइट और रॉन्ग, बट आई एम सेइंग एज लॉन्ग एज यू आर क्लियर इन योर हेड कि अगले 2 साल तक मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे थाली में रोटी और नमक कहाँ से आएगा, योर मिशन एंड योर विजन हैज ओनली वन थिंग विच इज योर बेस्ट, मचा दोगे। तो यू हैव टू फिगर आउट तुम्हारी फाउंडेशन क्या है। एंड नंबर 3, एंड विच आई बिलीव वी आर स्टार्टिंग बिजनेस, थोड़ा एक्सपीरियंस पा लीजिए उसके बारे में, काम करके देख लो, उसमें मैदान में उतरो थोड़ा सा, पता चलेगा तुम्हें। 3 चीजें अगर कर ली ना, आपका पैशन और बिजनेस मैच कर गया, आपके फाउंडेशन स्ट्रांग है और आपने थोड़ा कुछ करके वो करने की शुरुआत की, आई थिंक योर चांसेस फॉर सक्सेस इंप्रूव्स, एंड दैट्स माय हम्बल ओपिनियन। एंड जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्या लास्ट लाइफ लेसन देना चाहोगे? क्योंकि आपने बोला लाइफ के बारे में बहुत लिखते हो, नॉट जस्ट बिजनेस को छोड़कर, इन जनरल लाइफ के बारे में। अगर कोई 15 साल का बच्चा देख रहा है, 20 साल का, शायद कुछ बड़े लोग भी देख रहे हैं, एक जेनरिक आपको लाइफ स्टेटमेंट देना है, तो आप क्या दोगे? मैं कहना चाहता हूँ बस एक ही चीज़ कि भाई जिंदगी में डायरेक्शन डिसाइड करो। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है ना सूर्या, आप दौड़ते रहोगे और आपको कभी नहीं पता चलेगा आप दौड़ क्यों रहे हो। पहले डायरेक्शन डिसाइड कीजिए कि आप चाहते क्या है ज़िंदगी में, वो चेंज होगा। 15 साल में आप जो चाहते हैं, जो 25 साल में चाहते हैं, मैं नहीं कहता कि सेम रहेगा, पर एटलीस्ट 15 साल की उम्र में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि 20 तक मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। एक डायरेक्शन दीजिए जिंदगी को, गोल पोस्ट मत दीजिए। गोल पोस्ट इज अ प्रॉब्लम। गोल पोस्ट से आप हार्ड लाइन बना देते हो। तो डायरेक्शन मतलब क्या? जैसे फाइटर पायलट बनना है तो ये डायरेक्शन हुआ, फाइटर पायलट बनना गोल हुआ। तो डायरेक्शन कैसे? डायरेक्शन ये हुआ कि मुझे जिंदगी इस तरीके से जीनी है। 35 साल की उम्र में मुझे ऐसी जीनी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जब मैं 35 का होऊंगा, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं हूँ जब मैं 35 का होऊंगा तो मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है कि आई हैव अ स्टेबल इनकम, आई एम विद माई वाइफ, विद 2 किड्स, इन अ हाउस, विद माई ओन कार और समथिंग, और somebody else will think by the time I'm 40 I want to run my own business, get financial independence and blah blah blah. So ये आपको जिंदगी में ना क्लैरिटी देता है। नहीं तो अगर आप बोलोगे कि मुझे किसी कंपनी का सीईओ बनना है, किसी कंपनी का सीईओ बनना या एक एग्जीक्यूटिव लेवल जाना, आप ना जंप करते रहोगे, दौड़ते रहोगे, रैट रेस में लग गए, पता नहीं क्यों, कहीं ना कहीं आप लड़खड़ाओगे, फिर आपकी सेहत खराब होगी, फिर एक रिसेशन आएगा, आप जॉब गवा दोगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, बिकॉज वो डायरेक्शन नहीं है। गोल में था कि सीईओ बनना, शिट अब तो मेरा एक्सपीरियंस गया, अब सीईओ कौन बनेगा, है ना? बिकॉज जिंदगी में सिर्फ जिंदगी में आपके जॉब नहीं है ना, कुछ। दैट्स माई ओनली मैसेज। और शॉर्ट टर्म सक्सेस मत चेस कीजिए। कोई भी अच्छी चीज़, सबने बोला है, ज्ञान बांटा है बड़े बड़े लोगों ने, मैं तो बस आपको कॉपी करके बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म सक्सेसेस डोंट कम ईजी। देयर इज अ रीजन व्हाई ज्ञानी लोग बोल के गए जिंदगी में आज भी 3 ही 4 बेसिक्स हैं। बेसिक्स है, खाना चाहिए, अच्छा हेल्थ होना चाहिए, छत चाहिए, और भाई नियत चाहिए। बेसिक्स यही जिंदगी के, सब कुछ चेंज हो चुका है, ये नहीं चेंज होता। बाकी आप इंस्टाग्राम कीजिए, लिंक्डइन कीजिए, ट्विटर कीजिए, टिकटॉक कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपकी मर्जी। बट थैंक यू सो मच अभिजीत फॉर कमिंग ऑन द शो, एंड इट वाज लवली चैटिंग विद यू, एंड कॉफ़ी के बारे में जानने को बहुत मिला, एंड ओवरऑल एक बिजनेस को कैसे बिल्ड करते हो उसके बारे में बहुत पता लगा। तो थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, बातचीत करके बड़ा मजा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच। तो जब भी कॉफी तब बातचीत, अब कॉफी। गुड वन। चलो, नाइस। या